My dear students of section A1, A2 and B1, I am Raghavendra Pratap and I am with Unit 5 today. As all of you can see here on the screen, sorry, the Unit 5 is all about presentation, strategies and oral communication. Means this complete unit is with the aspects of presentation and its different strategies and about the oral communication which we do orally. ये हमारी 5वीं यूनिट है जो प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज प्रस्तुतिकरण किस किस तरीके से किया जाता है और मौखिक बातचीत मींस ओरल कम्युनिकेशन कैसे करना इजी होता है उन सभी के एस्पेक्ट्स को लेके यूनिट 5 रखी गई है. Again, which I generally do at the very much starting of my all videos, I will try to use both the languages as much as possible with the 100% standard of English and 100% standard of Hindi, so that all the students can get to know or comprehend something which I am explaining. The first thing. Second thing, very much important for me to understand where I need to change, where I need to improve. So बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मुझे पता चल सके मुझे कहाँ improvement करना है. So उसके लिए for that all of you need to leave your comments in the comment section properly. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Presentation strategies and oral communication starts with the first topic as content, which is analysis of locale. If I'm not wrong, all of you do know analysis very much well. लेकिन this new word which is in front of you as locale, this is very much new for every one of you. चलिए इसको समझते हैं. Before understanding analysis of locale, it is very much important to understand what locale is, because this is my regular habit to do, to brief every single word to the students ताकि उसकी समझ और ज्यादा ब्रीफ हो जाए. So what locale is? In simple word, यदि मैं लोकाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, one word is sufficient to explain the understanding of locale. Please, the pronunciation is locale. So a word which is sufficient enough to explain the understanding of this word, which is venue. यदि हम लोकाल वर्ड को किसी दूसरे शब्द से समझने की कोशिश करें तो वेन्यू इज द राइचस वर्ड टू यूज अगेंस्ट दिस वन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लोकाल. लोकाल के मीनिंग को समझने के लिए वेन्यू वर्ड बिल्कुल सफिशिएंट है. इसे थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं. वेन्यू इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ताकि आप लोकाल समझ जाएं. इसे समझते हैं लोकाल को और क्या हो सकता है. सो द फर्स्ट थिंग, द सीन ऑफ एनी इवेंट. इफ एनी इवेंट इज एट एनी प्लेस, the scene which you see about that event, that is locale. The location which you see of an action, that is locale. The place where a meeting is arranged or called, that is a locale. So आप किसी भी तरीके से इसे समझ सकते हैं. मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं. द सीन ऑफ एन इवेंट, जो कोई भी इवेंट हो रहा है उसके सीन को, उसका जो सीन आपको दिखता है उसको लोकाल बोल सकते हैं. द लोकेशन ऑफ एन एक्शन, जहां पर भी कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. एक्शन का मतलब फाइट सीन मत समझ लीजिएगा. एक्शन मींस समवन हु इज परफॉर्मिंग समथिंग. सो यदि कोई भी परफॉर्मेंस हो रही है तो उसकी लोकेशन को लोकाल बोला जाएगा. और बहुत सिंपल वर्ड्स में द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. यदि कोई भी प्रेजेंटेशन दी जा रही है, आई एम मूविंग माय कर्सर, प्रेजेंटेशन दी जा रही है या फिर कोई मीटिंग है तो उसकी जगह को लोकाल बोला जाता है. सो दीज थ्री थिंग्स आर सफिशिएंट एनफ टू एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकाल very much clearly. आगे बढ़ते हैं. The next thing is analysis of locale, which is the chief heading of this slide. So what analysis of locale? अभी हमने जैसे समझा, as we understood, locale is something which is related to the scene, location or place of an event, action or meeting. The same helps us
to understand what is analysis of locale. Analysis of locale is the study of presentation. I am moving the cursor with what I am reading, what I am explaining. Analysis of locale is the study of presentation with respect to the audience, occasion, and purpose, and few other supportive tools to make the presentation more effective. यदि हमको किसी भी इवेंट की, किसी भी एक्शन की, किसी भी मीटिंग या प्रेजेंटेशन का प्लेस, लोकेशन और सीन पता है, तो उनके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, द थिंग्स विच आर नियर अबाउट द इवेंट, नियर अबाउट द एक्शन, नियर अबाउट द प्रेजेंटेशन और मीटिंग, वो सारी उसको इफेक्ट डालती हैं. सो उनको फाइंड आउट करना, उनका अन्वेषण करना, यदि मैं सीधी भाषा में कहूं हिंदी में, यदि उसका अन्वेषण करा जाए, so that would be called as analysis of locale. So the same is written here. Analysis of locale is the study of presentation with respect to the audience, with respect to the occasion, with respect to the purpose, and with respect to the other supportive tools which make the presentation more clear, more effective, and that is the reality. So if I'm not wrong, this must be clear. आगे बढ़ते हैं on the next slide. The points to keep in mind before making professional presentation. What are those points which can help us to give a professional presentation or a business presentation? वो कौन कौन से points हैं, वो कौन कौन से steps हैं, वो कौन कौन से levels हैं, where we need to think very much deeply to give a very much effective professional presentation. चलिए one by one लेके चलते हैं. The 6 points, these 6 points, 1 2 3 4 5 6: planning, outline and structuring, method of presentation, voice modulation, body language, visual aids. These 6 points are directly responsible to make a presentation or a professional presentation or a business presentation perfect. Again I am saying, यदि किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन को या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा, बहुत इंप्रेसिव, बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, तो ये 6 चीजें, जिसमें प्लानिंग इज द फर्स्ट, outlining and structuring is the second, method of presentation is third, voice modulation 4, body language 5th, and visual aids 6th point है. 6 पॉइंट हैं जो उस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाजा ले लेते हैं ये सारी चीजें हैं क्या. इफ वी टॉक अबाउट प्लानिंग, व्हाट दिस प्लानिंग इज, व्हेन वी हैव अ टास्क टू गिव अ प्रेजेंटेशन, it is very much must to have the idea of the occasion of that presentation, have the idea of the audience for which you are giving the presentation. You must have a basic purpose in the mind before giving a presentation, and content must be clear to you. Must be clear to you means the content which you are going to deliver, the content which is shared to you to give presentation, that must be clear. So if you are preparing for a professional presentation, it is must to plan that, and for that planning it is must to decide the occasion, it is must to decide the audience, it is must to decide the purpose, and it too is must to decide the content. The second point is outlining and structuring. Outlining and structuring is all about when you have planned and when you are going to execute that, what way, what outline, what kind of structure you will give to that presentation. आप किस तरीके का structure, किस तरीके की outline उस presentation को देने की कोशिश करेंगे. So there are 3 basic steps for that thing as well. Means for outlining and structuring there are 3 basic steps. The first one is इंट्रोडक्शन. मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट समथिंग विच यू इंट्रोड्यूस टू द पीपल, और उस पीपल में ऑडियंस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एनीवन हु आर देयर टू लिसन दैट प्रेजेंटेशन. सो इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन, elaboration. The thing, the point, the topic which you introduce, again please look at the cursor, the thing which you introduce to the public, and you are giving the further details to elaborate the same introduction. जब आप उसी डिटेल को elaborate means बढ़ा के बोल रहे हैं, उस चीज को और deeply explain कर रहे हैं, that thing comes as elaboration.
and ultimately conclusion. Conclusion means summary. At the end, which you give, which you summarize. At the end, which you summarize. Conclusion is all about which you summarize at the end with the help of introduction which you gave and the elaboration which you did. That is conclusion. I think it चीजें clear हो गई होंगी. The third point, which too is very much important, that is method of presentation. So what is the method of presentation? Choosing the righteous mode of delivery. Again I'm saying, वो कौन सा तरीका है जो आपको आपकी प्रेजेंटेशन देने में सबसे ज्यादा मदद करता है. वो 4 तरीके के होते हैं, उसको आगे समझेंगे. I don't want to make every one of you confused with those four points at this level. सो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, इसके फॉर्मेशन से ही पता चल रहा है. प्रेजेंटेशन के वो अलग अलग तरीके जो आपको प्रेजेंटेशन देने में मदद करते हैं. प्रेजेंटेशन के मूविंग, प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके जो आपको प्रेजेंटेशन देने में मदद करते हैं. चूजिंग द राइचस मेथड ऑफ डिलीवरी व्हिच हेल्प्स यू आउट टू गिव द परफेक्ट प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन. व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चीजों को चेंज करना, मॉड्यूल करना. मॉड्यूलेशन, एक स्टैंडर्ड से, एक लेवल से दूसरे लेवल पर बदलना. दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. एंड व्हाट वॉइस मॉड्यूलेशन इज? ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, व्हिच यू आर चेंजिंग, व्हिच यू आर मेकिंग इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द वॉइस. दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन. That is voice modulation. So making voice characteristics more effective, that is voice modulation. इसमें भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ये सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूं ऑन द फर्स्ट स्लाइड, एंड ऑन रिस्पेक्टिव नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल ब्रीफ दीज ऑल 6 पॉइंट्स वन बाय वन. द फिफ्थ पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज. मुझे बताने की जरूरत नहीं है हाउ सिंपल इट इज. बॉडी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ बॉडी इज बॉडी लैंग्वेज, जहां पर हम बॉडी का मीन्स अपने शरीर का यूज करते हैं ताकि चीजों को, लैंग्वेज को और ज्यादा इजी बनाया जा सके. जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन शब्दों को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके, या फिर एक छोटा सा वर्ड कॉम्प्रीहेंड बनाया जा सके. सो ऑल दैट विच कम्स एज जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं. द लास्ट पॉइंट इज विजुअल एड्स. विजुअल एड्स बताने की जरूरत इसलिए है बिकॉज राइट नाउ इन द करंट एरा इट इज वेरी मच मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किन उन चीजों की मदद ले रहे हैं जो दिखने में अट्रैक्टिव होती हैं. दैट इज विजुअल मीन्स, हम सभी लोग जानते हैं, समथिंग विच इज सीन विद द हेल्प ऑफ आईज. विजुअल जो हमें दिख पाती हैं. एड्स का मतलब मदद होती है. सो देखने की तरीके से, देखने की वजह से जो हमें मदद मिलती है, दोज ऑल आर विजुअल एड्स. एंड in current era, people are using too much of visual aids to make the presentation more attractive, more comprehend, more effective. Okay, so these 6 points were briefed a bit. आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन इन्हें briefly समझते हैं. The first point, that is, just one second. Extremely sorry for the small pause. Okay, so we were on these 6 points. One by one we will understand these all a bit with more detail. चलिए, point number 1, planning. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, if you have a task to present something, that is, for that it is must to plan that, or for that planning 4 things are very much important. First one is occasion, second one is audience, where, here it is, third one is purpose, and fourth one is content. These 4 things are very much important. One by one इनको भी briefly समझते हैं. If we talk about occasion, it refers to the event and its relativity with the presenter. यदि हमें occasion पता है, means occasion की हिंदी होती है अवसर. यदि हमें किस वजह से उस प्रेजेंटेशन को देना है, या किस वजह से हम वो प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें टास्क दिया गया है, इफ वी नो अबाउट द इवेंट, यदि हमें इवेंट पता है, it becomes more easy and it becomes the first step to plan the presentation. And it too is very much important to get the relativity. Relativity means something which is related to, means
प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, when you are giving presentation, it is must the presentation which you are giving is related to you, means it must have relativity with you. So ये दो चीजें event का पता होना, which is the part of occasion, and relativity with the presenter, relativity with the presenter, that too is a part of occasion. Next one is, it gives an overview of time and context to deliver. Very much important. occasion में यदि हमें occasion पता हो तो it helps us to decide the time as well, means overview of time. हमें time पता चल जाता है किस हद तक, how deep, how much in detail we need to plan that, and context to delivery means जो content हमें deliver करना है उसके संदर्भ का हमें पता चल जाता है यदि occasion पता होता है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. यदि मैं कह रहा हूं आप में से किसी को भी कि आपको एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है या फिर एक लेक्चर रेडी करना है, इट इज मस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स विल आस्क द सेम क्वेश्चन, सर किस पर्पस से उस लेक्चर को देना है, किसके लिए देना है. किसके लिए देना है वो भी इवेंट को रेफर कर रहा है, और किस पर्पस से देना है वो भी ओकेजन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है. कॉन्टेक्स्ट टू डिलीवरी, कॉन्टेक्स्ट मींस उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हम प्रेजेंटेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दैट content. And the third point, it gets an idea of venue. यदि हमें venue पता चल जाता है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी हो जाती है, and it can be known only when you know the occasion. Venue तभी पता चलता है जब हमें occasion है. And one thing more, it gets an idea of venue and conglomerate or for gather. ये दो शब्द थोड़े से टिपिकल हैं, इसीलिए मैंने इनको क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया विद अनदर स्पेलिंग्स, विद अनदर वर्ड्स. सिनोनिम, मिंगलिंग जहां तक है ज्यादातर बच्चे जानते हैं, जिन चीजों को मिक्स कर देते हैं वो मिंगलिंग होती है. एंड व्हाट काइंड ऑफ मिंगलिंग इज दैट अ ग्रुप फॉर अ पर्पस विद डाइवर्सिटी. अलग अलग विचार, अलग अलग चीजें, अलग अलग भिन्नता के साथ जो कुछ लोग एक जगह एक पर्पस से इकट्ठे किए गए हैं, दैट इज कंग्लोमरेट. ओके, सो ये तीन चीजें ओकेजन के अंतर्गत आती हैं. इट रेफर्स टू द इवेंट एंड रिलेटिविटी विद द प्रेजेंटर. इट गेट्स एन ओवरव्यू ऑफ टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट टू डिलीवर, एंड इट गेट्स एन आइडिया ऑफ वेन्यू एंड कंग्लोमरेट और फॉरगेदर. ये चीजें ओकेजन के अंतर्गत आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडियंस. हाउ इंपॉर्टेंट दिस टू इज. ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा इफ आई एम गिविंग यू अ टास्क, इफ आई एम गिविंग यू अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर अ लेक्चर, और ये नहीं बता के दे रहा आपकी ऑडियंस कौन है. थिंक लॉजिकली, यहां पर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. यदि आप लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ ऑडियंस इन द माइंड. आप अपने दिमाग में एक ऑडियंस की सोच रखेंगे कि ऑडियंस कौन होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हैं. थिंक लॉजिकली, जैसे ही आपको मैं लेक्चर रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, एंड नेक्स्ट डे when you are ready to give the presentation, आप जैसे ही स्टेज पर जाते हैं आपको पता चलता है सामने सभी बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं. how difficult it will be when you prepare that presentation with having the idea of the audience of your age. आपने यदि प्रेजेंटेशन अपनी उम्र के लोगों के हिसाब से तैयार की है तो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा when you will see the aged people there sitting as an audience. यही चीज यहां पर हाईलाइट की गई है. अंडर द सेक्शन ऑफ प्लानिंग, इट इज मस्ट आपको ऑडियंस पता हो, और ऑडियंस में क्या क्या पता होना चाहिए, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. सो व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, इट टू इज important to know with respect to the audience. What are their likes and dislikes, this too is very much important. उनकी पसंद नापसंद क्या है. मैं उस डीपनेस की बात नहीं कर रहा हूं. I do not want any presenter to be very much deeply close with the audience, ताकि उसको लाइक और डिसलाइक पता हो, लेकिन हमको एक जनरल आइडिया पता हो वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं. यदि मुझे पता है किस फील्ड से रिलेटेड है तो उनके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है, सेकंड पॉइंट इज, आर दे familiar with the topic, क्या उनको टॉपिक ऑलरेडी बता दिया गया है. सो दिस टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑडियंस को यदि टॉपिक पता है तो दे हैव अ पर्टिकुलर माइंडसेट बिफोर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन. उनके दिमाग में एक माइंडसेट है, और यदि नहीं है देन इट टू इज मस्ट टू नो
फॉर द प्रेजेंटर कि वो उसको इंट्रोड्यूस कैसे करें, हाउ दे नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द ऑडियंस. सो ये दो चीजें. थर्ड वन इज देयर एटीट्यूड हॉस्टाइल और फ्रेंडली. यदि ये पता चल पाए तो हमारी प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू गिविंग अ प्रेजेंटेशन. उनका फ्रेंडली नेचर है या हॉस्टाइल नेचर है, ये डिपेंड करता है कैसे. सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर ओन क्लास, उनका फ्रेंडली होगा. बट if you have enmity with the other sections and they are the part of that presentation, आपका presentation ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन में ऑडियंस का नेचर हॉस्टाइल होगा. ये छोटा सा एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत इजीली पता चल जाता है इन चीजों का. सो इज देयर एटीट्यूड, ऑडियंस की बात कर रहा हूं, एटीट्यूड इज हॉस्टाइल और फ्रेंडली. यदि ये पता चल पाए तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी हो जाती है चीजों को प्रिपेयर करने में. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्रुप. यहां पर साइज का मतलब प्लीज डू नॉट रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ समवन. साइज इज ऑल अबाउट ऑडियंस कितनी बड़ी है, एज में नहीं, नंबर्स में. हाउ बिग द ऑडियंस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर. मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, कर्सर को ध्यान दीजिएगा. व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्रुप मींस वो ऑडियंस कितनी बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर. नंबर के हिसाब से कितनी बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो पाती है. यहां पर छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के देखिएगा. यदि आपने प्रेजेंटेशन रेडी की है and you find only 10 people as an audience there, आपकी comfortability level अच्छी होगी. लेकिन you don't have any idea of the size of the audience, उस कंडीशन में यदि आपके सामने 500-5000 लोग खड़े कर दिए जाएं, you will shake there on the stage, आप हिल जाओगे. So size matters a lot of audience. audience का size बहुत ज्यादा मैटर करता है. Next one is age category and gender डिस्ट्रीब्यूशन. दिस टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको जेंडर स्पेसिफिकेशन और एज कैटेगरी पता हो. ऑडियंस की एज कैटेगरी पता हो, यू रिलेट द प्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एज. बच्चे होंगे तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन रेडी करोगे. इफ यू विल फाइंड ऑडियंस विद योर सेम एज, आप उसी तरीके से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करोगे. एंड इफ द ऑडियंस इज वेरी मच एज्ड, you will prepare the presentation with respect to the age people. और gender specification, यदि हमें gender specification पता चल जाए तो भी हमारे लिए बहुत easy हो जाता है. suppose you are giving a presentation to the very much old ladies, तो उनके लिए वहां पर you cannot make them satisfied to listen something which is related to science. only with few ladies who are directly working with some laboratories, with some research institutes, they will be interested to be a part of that presentation. लेकिन आमतौर पे हम ये मानते हैं, या ऐसा ले लेते हैं, why to blame the ladies here, ऐसा मान लेते हैं you are giving a presentation to prepare a very much fantastic dish. बहुत अच्छी डिश बनाने के लिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं. उस कंडीशन में आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो सारे मेल हैं. कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? वेरी मच फ्यू will be interested to listen you patiently, क्योंकि हर किसी मेल की आदत नहीं होती कुकिंग में इंटरेस्ट रखने की. सो these were essential points which helps us to decide the audience with respect to the planning. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पर्पस. यदि हमारे दिमाग में पर्पस पता हो, यदि हमको प्रेजेंटेशन से पहले पर्पस पता हो, कितना इजी हो जाता है वो हमारे लिए, कितना इजी हो जाता है. बिकॉज इफ यू हैव द पर्पस टू इन्फॉर्म द इंफॉर्मेशन, यदि आपके दिमाग में सिर्फ पर्पस का, यदि प्रेजेंटेशन का पर्पस चीजों को इन्फॉर्म करने का है, यदि चीजों को एनालाइज करने का है और चीजों को परसुएट करने का है, दीज 3 पॉइंट्स व्हिच कम्स अंडर पर्पस. प्रेजेंटेशन यदि हम देते हैं, हर प्रेजेंटेशन के पीछे कोई ना कोई एक पर्पस होता है. इवन व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज इन स्कूल कॉलेजेस, देन टू देयर इज अ पर्पस टू. हालांकि ज्यादातर लोगों ने बताते नहीं है, बच्चे बताते नहीं है, बट टू प्रूव themselves they become the part of a stage. अपने आप को प्रूव करने के लिए वो स्टेज पे जाते हैं. That too is a purpose. सो प्रेजेंटेशन यदि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है, यदि आपको उस प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का पर्पस पता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. द फर्स्ट पर्पस इज टू इन्फॉर्म. इफ एज अ पर्पस you have as a purpose, you need to inform the things which are there in your mind, that is to inform.
टू एनालाइज, चीजों को एनालाइज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यदि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो. एंड द थर्ड पॉइंट which is very much important for the business presentation or professional presentation, persuade. Persuade का मतलब यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं. Persuade is all about something where you convince the people, जहां पर लोगों को कन्विंस करते हो. यस, यदि आप किसी भी स्टेज पर हो और आप अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना चाहते हो, this could be the third purpose. So if you have the knowledge of, if you are known to the purpose, you can plan your presentation better. Again I am highlighting, if you are known to the purpose, यदि आपको purpose पता है तो आप presentation थोड़ी सी अच्छी prepare कर पाएंगे. फोर्थ पॉइंट आता है content. अब content में क्या है, सॉरी, कंटेंट में क्या है? कंटेंट इज ऑल अबाउट, इट डिपेंड्स अपॉन द ओकेजन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा कंटेंट उसी के हिसाब से होता है जैसा हमारा ओकेजन हो. कंटेंट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ओकेजन. Content will be decided with respect to the audience. Content will be decided with respect to the purpose. ये तीनों चीजें डायरेक्टली कंटेंट को डिसाइड करती हैं. यदि हमारा कोई भी अवसर जैसा हो, हम कंटेंट वैसा ही डिसाइड करेंगे. जैसी हमारी ऑडियंस हो, कंटेंट हम वैसा ही डिसाइड करेंगे. और जो पर्पस हमारे दिमाग में, द पर्पस विच वी हैव इन आवर माइंड, दैट डिसाइड्स आवर कंटेंट. सो ये चार चीजें थी इन विच occasion, audience, purpose and content comes under the part of planning किसी भी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की. सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं, आउटलाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, एंड हाउ सिंपल दिस टू इज. जैसा कि मैंने पहले बताया था, इट हैज थ्री बेसिक स्टेप्स. ये तीन बेसिक स्टेप्स रखता है. सो द सेम इज मेंशन्ड हियर. देयर वर थ्री बेसिक थिंग्स व्हिच डिसाइड द प्रोसेस टू मेक अ प्रेजेंटेशन बेटर. मैंने यहां पर एक वर्ड चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है बल्कि बोलना चाहिए, जो आउटलाइन और स्ट्रक्चरिंग को रिप्लेस कर रहा है. प्रोसेस मींस आई चेंज द वर्ड अगेंस्ट आउटलाइन एंड स्ट्रक्चरिंग एज प्रोसेस. मैंने प्रोसेस दिया है बिल्कुल, क्योंकि ये आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. जब भी कभी हम किसी चीज को, किसी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है उसको आउटलाइन देना. उसको किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, मींस हाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट, उसके स्टेप्स को डिसाइड करना. दैट इज कॉल्ड आउटलाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग. सो under this section there are 3 points जो मैंने पहले भी बताया. इंट्रोडक्शन, एंड व्हाट इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, द जनरल आउटलाइन व्हिच यू आर लेटिंग योर ऑडियंस नो. जो जनरल आउटलाइन आप अपनी ऑडियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन मींस व्हाट यू हैव इन योर माइंड टू इंट्रोड्यूस देम. आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. सेकंड पॉइंट इज, यदि आपने किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया, मींस इफ यू इंट्रोड्यूस समथिंग टू द ऑडियंस, हाउ यू आर एलैबोरेटिंग दैट फर्दर. आप उसको कैसे इलैबोरेट कर रहे हो, वो मेन बॉडी का पार्ट बनता है. मींस दिस इज दैट पार्ट विच एक्सप्लेन, दिस इज दैट पार्ट विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन डिटेल. बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है. it takes the help of examples, it takes the help of anything which can make the topic comprehend to the audience. And the third point, यहां पर जो लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार, so that all of you can relate the words which are said about this elaboration. This part is further elaborated to the introduction, further elaboration to the introduction. This is the phase where presenter gives the structure to the idea. जो idea, जो topic आपने introduce किया है, उसको structure देते हैं. This is that phase. And third point, conclusion. Conclusion is all about जहां पर आप चीजों को summarize करते हो. As I explained earlier as well, summarize means आप summary प्रस्तुत करते हो. You are summarizing something which you introduce and elaborated with the further details. Again I am saying, conclusion में आप introduction, जो चीज आपने introduce की है, और उसको introduce करने के बाद जो elaboration किया है, उसको summarize करते हो with few last sentences. So this was the second point. Third point is all about the method of presentation. Now what is this method of presentation? जैसा मैंने पहले बोला था, there are 4 points which are included in it. So these 4 points are here. Sorry. The first point is, जैसा मैं pronunciation बोल रहा हूं, please try to pronounce these all words as is. This is the first word, IMPROMPTU. That is impromptu.
Second one is memorization. I am sure all of you are well known to this word. Manuscript, some of you know. Manuscript का मतलब होता है पांडुलिपि, means वो inscription जो आपके हाथ में, जो आपने रेडी किया है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो बुक हो, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो थीसिस हो, that is manuscript. मैन्युस्क्रिप्ट की शुद्ध हिंदी होती है पांडुलिपि. एंड द लास्ट वन इज EXTEMPORANEOUS, मींस एक्सटेम्पोरेनियस. चलिए चारों को समझते हैं कितना आसान है. Method of presentation. Impromptu is that method of presentation where you are not giving a single point of time, जहां पर आपको 1 मिनट 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया गया है किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने का. The same is written without preparation if you are giving a presentation. The second point is memorization. Memorizing few key points before the presentation. जो आप presentation ready कर रहे हो, the content which you are going to share with the audience, you memorize some points so that you can deliver your presentation better. आप वहां पर कुछ points को कुछ points को memorize करते हो ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिलेट कर पाओ उन पॉइंट्स के साथ जो आपने डिसाइड किए हैं, उस कंटेंट के साथ जो आपके पॉइंट्स उस कंटेंट को ब्रीफ कर पाए. दैट इज मेमोराइजेशन. थर्ड पॉइंट इज मैन्युस्क्रिप्ट. व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? जहां पर आप अपनी पूरी की पूरी थीसिस को अपने साथ रखते हैं, वेयर यू कीप द कंप्लीट इंस्क्रिप्शन विद यू ऑन द स्टेज so that you cannot miss anything. That is a way of manuscript presentation. और ये ज्यादातर जब भी कभी हम presentation, paper presentation देते हैं या thesis presentation देते हैं, it is must to keep the complete manuscript with us. But हालांकि ये बोला जाता है when you are keeping a manuscript with you, you are not supposed to read your manuscript in front of the audience. वहां पर आप अपनी manuscript को पढ़ना ना चालू कर दें. And the last one is extemporaneous. This is the best way of presentation, best method of presentation. Here you are informed in prior for the presentation, means you have enough time to prepare everything which can make your presentation better and effective. So extemporaneous with the proper given time. आपको पूरा समय दिया गया है. So this was the fourth point, method of presentation, under which four different methods comes: impromptu, memorization, manuscript and extemporaneous. अगले पॉइंट पे चलते हैं, voice modulation, which is the fourth one. As I said, modulation, something which module means जो change करती है with respect to the voice, that becomes voice modulation. चलिए जानते हैं voice modulation क्या है. Under voice modulation there are 5 things which comes. हालांकि ज्यादा भी आती हैं, बट एट योर स्टैंडर्ड मींस आपके लेवल के हिसाब से these 5 points are sufficient to understand what is voice modulation. The first one is pause, second one is stress, third one is pitch, fourth one is pace, fifth one is volume. So what is pause? यदि मैं गलत नहीं, all of you do have a feature in your phones or on the remote of your LED, LCD or CD player, that is pause. जब आप कभी भी कोई भी वीडियो चलाते हो तो पॉज का एक बटन आता है. पॉज का मतलब होता है टू स्टॉप दैट वीडियो इन बिटवीन, आप उसको बीच में रोक दें. दिस इज अ फीचर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन. जब भी कभी आप किसी चीज को बोलने की कोशिश करते हो एंड यू गिव अ लिटिल पॉज इन बिटवीन, आप वहां पर छोटा सा पॉज लेते हो. यहां पर मैंने 2 जगह छोटे छोटे पॉज लिए हैं. आई टुक 2 pause in between the explanation, that is called pause. और pause मदद क्या करता है? It helps to make the next word, again I am saying it helps to make the next word more valuable. अगला जो शब्द आपके स्पीच में आने वाला है उस शब्द को ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है. So it shows the value to the next word or phrase. जो आप अगला phrase या word यूज करने वाले हैं उसको ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है. Pause are given to the word in the speech of sentences. Pause sentences में भी दिया जाता है in between and शब्दों में भी दिया जाता है. Means if you are using 2 different words and you are giving a pause in between those 2 words, उन दोनों शब्दों के बीच में pause देते हैं. You make next word more valuable. मैंने अभी भी पॉज दिए थे. सो दिस इज अ वे, ये तरीका है जहां पर आप पॉज की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं. इनडायरेक्टली यू गिव द इंपॉर्टेंस टू द वर्ड्स यू आर यूजिंग इन योर प्रेजेंटेशन, इन योर स्पीच. सेकेंड वन इज स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब
ज्यादातर इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझा जाता है स्ट्रेस मींस तनाव. बट व्हाट स्ट्रेस इज? दिस इज अ फीचर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन. हाउ? स्ट्रेस इज दैट वेयर यू प्रेशराइज अ वर्ड. यहां पर मैंने एक शब्द को थोड़ा सा प्रेशर से बोला कंपैरेटिवली द नॉर्मल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड विच आई एम यूजिंग इन माय स्पीच, इन माय एक्सप्लेनेशन. मैंने जो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन. सो स्ट्रेस इज ऑल अबाउट इट शोज द एफर्ट्स टू मेक समथिंग मोर इंपॉर्टेंट. ये भी एक वो तरीका है जहां पर किसी भी चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? स्ट्रेस किसी भी शब्द को प्रेशर के साथ, ज्यादा स्ट्रेस के साथ, ज्यादा दबाव के साथ जब आप बोलते हो तो उस वर्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो पॉजिटिव सेंस में. ज्यादातर ये माना जाता है पॉजिटिव सेंस में इसकी वैल्यू बढ़ाई जानी चाहिए. चलिए, गिविंग मोर स्ट्रेस टू अ वर्ड और इन अ सेंटेंस एज वेल. या तो आप शब्दों को स्ट्रेस देके बोल सकते हो, एंड इट टू इज पॉसिबल टू गिव द स्ट्रेस टू द कंप्लीट सेंटेंस. ये भी संभव है कि पूरे वाक्य को आप प्रेशर के साथ बोल दें. जो मैंने अभी बोला दैट वाज एन एग्जांपल. मैंने पूरे के पूरे सेंटेंस को एग्जांपलीफाई किया स्ट्रेस के साथ. थर्ड पॉइंट इज पिच. और व्हाट दिस पिच इज? ये पिच वॉइस मॉड्यूलेशन का वो फीचर है जो आपको डायरेक्टली आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है. पिच इज दैट वे व्हिच let the audience know about your mood. आपके मूड के बारे में जानकारी देता है. The same is written here. It gets an idea of someone's mood. Someone's means जो बोल रहा है, जो प्रेजेंटर है, जो स्पीच दे रहा है, उसके मूड का पता चलता है. So it goes with high, low or medium depends on the state of the mind of the presenter. जो प्रेजेंट कर रहा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके माइंड के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाई पिच में अपनी स्पीच दे रहा है, लो पिच में दे रहा है, मीडियम पिच में दे रहा है. जनरली कंसीडर ये किया जाता है कि वो मीडियम पिच में दे, सो दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल. ओके, हाई पिच थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, लो पिच थोड़ा सा लो साउंड करती है. सो मीडियम इज द परफेक्ट पिच टू यूज व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वन इज पेस. पेस का मतलब यदि कुछ बच्चे जानते हो तो पेस का मतलब होता है कदम. यदि आप हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे, या एक और हिंदी का शब्द है दैट इज पग, मींस द स्टेप्स. सो पेस इज ऑल अबाउट समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ स्पीकिंग. आप अपने बोलने में कितने शब्दों का यूज कर रहे हैं. हाउ मेनी वर्ड्स यू आर यूजिंग इन योर स्पीकिंग. यहां पर मैंने थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश की और उसी को यदि मैं धीमे बोलने की कोशिश करता हूं, हाउ मेनी वर्ड्स यू आर यूजिंग इन योर स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड पेस. द सेम सेंटेंस आई स्पोक इन टू डिफरेंट वेज मींस विद टू डिफरेंट रेट ऑफ स्पीकिंग. यस, इज इट क्लियर? सो पेस इज ऑल अबाउट दैट. और पेस है क्या, इसको एक तरीके से और समझा देते हैं. मिमिक्री आर्टिस्ट आप लोगों ने देखे होंगे, यदि मैं गलत नहीं हूं. मिमिक्री आर्टिस्ट जो मिमिक करते हैं किसी भी चीज को, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच हेल्प्स देम टू मिमिक, दैट इज उनके पास एक ही चीज होती है जिसकी मदद से वो मिमिक्री कर पाते हैं किसी भी आर्टिस्ट की, किसी भी दूसरे आर्टिस्ट की. वो पेस की वजह से ही कर पाते हैं. सो द रेट ऑफ स्पीकिंग ऑफ समवन इज पेस. ये भी वॉइस मॉड्यूलेशन है, एंड दिस टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लीव द इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस in presentation. Next one is volume. Volume के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. If the video you are listening is with low volume, you won't be able to understand, you won't be able to comprehend, you won't be able to like relate properly with the content with someone briefed. आप समझ ही नहीं पाएंगे. So volume is all about something which is audible enough to the audience, जो सामने वाले को समझ में आए. and it is very much important. if the audience is very much huge, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस जगह ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी आवाज उन तक पहुंचे. यदि वो नहीं पहुंचेगी तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट ले लें, कितने भी अच्छा अदर फीचर्स प्लान कर लें, कितना भी अच्छा आउटलाइनिंग एंड स्ट्रक्चर दे दें, या और किसी भी पॉइंट्स को आप रख लें, विजुअल एड्स अच्छे हो, इफ यू आर नॉट ऑडिबल टू एनीवन, आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेक ए प्रेजेंटेशन बेटर. फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज. एंड बॉडी लैंग्वेज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है. द डेफिनेशन विच आई यूज्ड अर्लियर एट द वेरी मच स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. बॉडी लैंग्वेज, प्लीज look at the cursor. I'm talking about the language which is related to body. Means language of body is body language. जो शरीर की भाषा है उसी को body language कहते हैं. और एक नए तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करूंगा. सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है बॉडी लैंग्वेज की डेफिनेशन को डिफाइन करना. लैंग्वेज ऑफ बॉडी
is called body language, but it must include gesture, posture, expression and body movement. ये चार चीजें इसमें इंक्लूड होना जरूरी है. जो शरीर की मदद से आप भाषा का यूज कर रहे हैं, वहां पर आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं जो उसको बॉडी लैंग्वेज नाम देते हैं. वो है जेस्चर, जिनको इशारा बोलते हैं हिंदी में. पोस्चर, जिनको एक ढंग बोलते हैं, बैठने का, उठने का, खड़े होने का. एक्सप्रेशन, जो आप भाव को बोलते हैं, जो चेहरे पे आते हैं. एंड बॉडी मूवमेंट, दो हाथों का मूवमेंट करते हैं आप, जो फिंगर्स का मूवमेंट करते हैं. दोज ऑल आर, जो नॉडिंग करते हैं, दैट टू इज बॉडी मूवमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. एक नई डेफिनेशन दे रहा हूं, यदि आपको समझ में आए तो. व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. बॉडी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स. बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, वो भाषा है जो शब्दों के साथ नहीं है, बट it is very much important. It makes the language of words more important and effective. ये और ज्यादा इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट बना देती है उस भाषा को जो अक्षरों के साथ है. Means the same which I said is inscripted here. A language without letters, which is used with the language of letters and makes it more clear and understandable, is body language. So this was the fifth point, and sixth one is all about visual aid. Visual aid का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बोला था. visual means which you visualize, जो आप देख पाते हो. and aid का मतलब मदद. visual aid is all about something जो आप देखने की वजह से चीजों को समझते हो. and all the things which helps the audience to visualize thing, visualize content, visualize objects, वो सारा visual aids की कैटेगरी में आता है. Means all the supportive tools and instruments which helps to present ideas and thoughts better are visual aids. और इसमें क्या क्या आते हैं? प्रोजेक्टर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टर आप ज्यादातर लोग जानते हैं, which projects the things. So projector, that too is a part of visual aid. Laptops, which you use to display pictures, that too is a part of visual aid. Pointer, which you take as a help to point out something. PPTs, that too is a part of visual aid. Sound system, which you use for the public, that too is a visual aid, क्योंकि वो आवाज रिलेट कर पाते. all the supportive instruments and tools which you use to make the audience more visualize the things, more visualize the content which you are sharing in your presentation, वही visual aid बन जाते हैं. So these 6 were the points. मैं एक बार reiterate कर देता हूं दोबारा से. यहां देखिएगा, points to keep in mind before making a professional presentation or business presentation better. These 6 points are explained one by one very much clearly. Planning, where it is very much important to know the occasion, audience, purpose and content. Outlining and structuring, where it is must to divide your presentation in introduction, elaboration and conclusion. Method of presentation, which are impromptu, memorization, manuscript and extemporaneous. Voice modulation, जो हमने pitch, pace, volume के तौर पे समझा था. यहां देखिएगा, this is pace, stress, pitch, pause, stress, pitch, pace, volume. बॉडी लैंग्वेज, जो शारीरिक भाषा है. विजुअल एड्स, जो चीजें आपको किसी भी चीज को विजुअलाइज, ऑडियंस को विजुअलाइज करने में मदद करती हैं. आगे लेके चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलेटिंग स्टाइल एंड कंटेंट इन द प्रेजेंटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा भी है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. मॉड्यूलेटिंग स्टाइल मींस, मैंने जो बोला था कुछ देर पहले, जो चीज मॉड्यूल करते हो आप, चेंज करते हो. स्टाइल का मतलब सभी लोग जानता, अ वे ऑफ स्टाइल विच यू कैरी, एक वो तरीका, दैट डिफरेंट, दैट डिस्टिंक्ट वे विच यू अडॉप्ट टू प्रेजेंट समथिंग differently. हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है. द वे विच आई एम यूजिंग राइट नाउ टू प्रेजेंट दीज ऑल थिंग्स, मेरा तरीका अलग है, मेरा स्टाइल अलग है. एग्जैक्टली इट कैन नॉट बी यूज बाय द अदर पीपल. दूसरे लोगों का अलग तरीका होता है. इट मे पॉसिबल उनका मुझसे ज्यादा बेटर हो, इट मे पॉसिबल मेरा उनसे ज्यादा बेटर हो. दिस इज ऑल अबाउट द वे विच आई यूज टू प्रेजेंट द थिंग्स. मॉड्यूलेटिंग स्टाइल एंड कंटेंट इन प्रेजेंटेशन, ये हमारा टॉपिक है, इसको लेके चलते हैं. सो एसेंशियल थिंग टू अचीव इन प्रेजेंटेशन, कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जो स्टाइल को और कंटेंट को डिसाइड कराती हैं. दोज आर 3, जिनको हम CCF बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी. Essential things to achieve in presentation. आपकी प्रेजेंटेशन में ये 3 चीजें अचीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन आई एम सेइंग these 3 things, confidence, clarity, fluency is very much important to achieve in presentation. So इनको समझते हैं वन बाय वन. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन?
of these all three things to grow in an academic and professional career. यदि आप अपने एकेडमिक वर्ड में, एकेडमिक करियर में या फिर प्रोफेशनल करियर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक लेक्चर को या प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर पाए ऑडियंस को. जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, टू ग्रो, अपनी बढ़ोतरी के लिए, टू ग्रो इन our academic and professional career, we must have the ability to stand in front of the audience and deliver a lecture or presentation on a certain topic. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसके बाद where that must be, यहां पर इतना ही नहीं, देना आना चाहिए, इतना भी जरूरी है. where that is must to be very much convincing, supported with facts and examples. ये भी जरूरी है कि प्रेजेंटेशन आपकी कन्विंसिंग हो, यानी कि सामने वाले को परसुएट कर पाए, और वो जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स के साथ ब्रीफ की गई हो. सो दीज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू अचीव CCF, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी. ये इन तीन चीजों को अचीव करने की वजह से हम प्रेजेंटेशन को इजी बना पाते हैं, अपने पर्पसेस अचीव कर पाते हैं. इसको वन बाय वन समझते हैं. कॉन्फिडेंस, पहला पॉइंट, इट इज अ टू वे शार्पन सॉर्ड. यहां पे टू वे शार्पन सॉर्ड का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, एक ऐसी दुधारी तलवार जो दोनों तरफ से एक्ट करती है. यदि आप, इफ यू आर यूजिंग अ सॉर्ड, यदि आप एक तलवार यूज कर रहे हो, उस कंडीशन में यदि वो दुधारी है तो अ शार्पन एज इज एट योर साइड एज वेल. एक यदि नुकीली धार आपके एनिमी की तरफ है तो एक नुकीली धार आपकी तरफ भी है. सो कॉन्फिडेंस इज दैट थिंग जो टू वे शार्पन सॉर्ड की तरह होती है, जो आपको या तो सामने खड़ा करने में मदद करेगी, where it can make you run from the stage or can make you stand firmly there. या तो आपको वहां से भगा देगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा तो वहां पर स्टैंड करेगी और आपको इजीली चीजें प्रेजेंट करने में मदद करेगी. सो कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और कॉन्फिडेंस है क्या? दैट इज जस्ट अ मेंटल स्टेट. ये एक वो मेंटल स्टेट है आदमी की जिसमें उसे एक पुश मिलता है, वेयर ही और शी gets a push to achieve something which he or she decided. So जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, it is a mental state to believe on you and it pushes you forward. ये आपके आगे बढ़ाती है. आगे लेके चलते हैं क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब something which is very much clear with respect to the comprehension, with respect to the understanding. So clarity means to make all the statements of the speaker very much understandable to the listener. Clarity का मतलब होता है जो भी कोई स्टेटमेंट, जो भी कोई कंटेंट शेयर किया गया है ऑडियंस के साथ, वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, कॉम्प्रीहेंड हो. स्पीच ऑफ अ स्पीकर में लैक क्लैरिटी. द थिंग, स्पीच of a speaker may lack clarity if the speaker, ये कुछ चीजें जो मैं अभी बोलने वाला हूं, these few things can ये कुछ चीजें जो मैं बोलने वाला हूं वो आपको क्लैरिटी को अचीव करने में मिस करा सकती हैं. सो इट इज वेरी मच मस्ट टू अवॉइड दीज फ्यू थिंग्स. सो स्पीच ऑफ अ स्पीकर में लैक क्लैरिटी इफ द स्पीकर स्पीक्स आइदर वेरी मच फास्ट और स्लो. यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीच को बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा धीमे बोलते हैं, सो यू कैन लैक विद द क्लैरिटी टू योर स्पीच, टू योर प्रेजेंटेशन. आप वहां पर कमी महसूस कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इट डज नॉट आर्टिकुलेट द वर्ड प्रॉपरली. यदि आप जिन शब्दों को बोल रहे हैं, यदि आप उनको प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर रहे हैं. अब आर्टिकुलेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड होगा, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं इन बोथ द लैंग्वेजेस. व्हाट इज आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन, इसको देखिएगा, वेयर आई एम मूविंग माय कर्सर. आर्टिकुलेशन इज ऑल अबाउट समथिंग, द मूवमेंट विच यू गिव टू द पार्ट्स ऑफ योर माउथ. जो आपके मुंह में जो हिस्से हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिसकी मदद से आप चीजों को, आप शब्दों को बोल पाते हैं. सो इफ द आर्टिकुलेशन, इफ यू आर्टिकुलेट वर्ड्स प्रॉपरली, तभी वो सामने वाले के लिए क्लियर होगा. सो यदि आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है, यू मे लैक विद द क्लैरिटी. यदि आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है, आप क्लैरिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज pronounces incorrectly or does not follow the standard pronunciation. There is a standard pronunciation of every language, for Hindi, for English, for Japanese, for Chinese, for Korean, for
फ्रेंच, फॉर जर्मन, हर एक भाषा का एक प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड होता है और उस प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए आर्टिकुलेशन पैटर्न होता है. सो बोथ द थिंग्स मस्ट बी अचीव्ड बाय. सो प्रोनाउंसेस इनकरेक्टली, यदि आप किसी भी शब्द को इनकरेक्टली प्रोनाउंस करते हैं तो सामने वाला इट मे पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड डिफरेंटली, किसी अलग अंदाज में समझ जाए या किसी और वर्ड को वो रेफर कर दे प्रोनाउंसिएशन जो आपने यूज किया है. सो दैट टू कैन लैक विद द क्लैरिटी. Next point is gives wrong emphasis or stress on words in the speech. यदि आप किसी भी हालत में गलत स्ट्रेस दे देते हैं, गलत स्ट्रेस का मतलब होता है, जो मैंने पहले भी बोला, स्ट्रेस इज ऑल अबाउट द वे वेयर यू गिव द वैल्यू टू द नेक्स्ट वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस. सो यदि आप ऐसा गलत कर देते हैं तो पीपल विल नोटिस दैट एंड लक विद द क्लैरिटी. नेक्स्ट वन इज यूज अनफैमिलियर वर्ड्स. अनफैमिलियर वर्ड्स, जो शब्द ज्यादा पहचान में नहीं है लोगों के, मींस जस्ट टू शो योर सुपीरियरिटी, आप अपनी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो विच आर नोन टू यू ओनली और विच आर नोन टू वेरी मच हाई एलीट पीपल और वेरी मच नॉलेजेबल पीपल. सो आपको वहां पर अपनी ऑडियंस को उस लेवल का नहीं समझना चाहिए. यू आर देयर टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद दोज वर्ड्स विच आर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड, विच आर कंफर्टेबल टू लेट द अंडरस्टैंडिंग क्लियर टू द स्पीकर, टू द ऑडियंस. सो आपको उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. सो यूज अनफैमिलियर वर्ड्स can lack with the clarity. And the last one is inappropriate and irrelevant content. Inappropriate content means जो अप्रोप्रिएट है ही नहीं, मींस जो सही है ही नहीं, या फिर इररेलेवेंट, जो उस परिस्थिति या फिर उस ऑडियंस के साथ रेलेवेंट है ही नहीं. रेलेवेंट मींस संबंधित, या तो सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, उपयुक्त नहीं है. इनअप्रोप्रिएट का मतलब अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त नहीं है, या फिर इररेलेवेंट, उनसे रिलेटेड नहीं है. सो यदि ये दोनों चीजें भी होंगी, if the content is irrelevant or inappropriate, it may lack clarity to the audience. So this was all about something clarity. And the last one is fluency. हमने बात करी थी CCF की. So CC, confidence and clarity is clear. Now we are on fluency. What fluency is? Fluency is all about where you never lack with the stoppage. जहां पर आप कहीं पर भी रुकते नहीं हैं, means you are getting the thoughts, you are getting the words regularly. Your supply of words which is given to you by your mind. आपके दिमाग में आपका जो दिमाग है वो आपको प्रॉपर शब्द, प्रॉपर थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है. दैट इज फ्लुएंसी. फॉर अ बेटर फ्लुएंसी, आज These questions to yourself. अच्छी फ्लुएंसी के लिए ये सवाल आपको अपने से पूछे जाने जरूरी हैं. Do I say क्या आप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं? ये फिलर्स एंड फॉगॉन्स बोले जाते हैं. फिलर्स मींस जो आपके पॉज को, जो पॉज किसी नेक्स्ट वर्ड को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए नहीं यूज किया गया. मींस यू यूज अ पॉज, वॉइस मॉड्यूलेशन इन योर स्पीच इन बिटवीन ऑफ अ वर्ड, नॉट टू मेक द नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, बल्कि वो इसलिए यूज हुआ क्योंकि आप अगला शब्द भूल गए हो. उसे फॉगॉन्स बोलते हैं या फिर फिलर्स बोलते हैं, जो गैप आया है उसको फिल कर रहे हो, एक्सेट्रा. सो the question which you need to ask to understand how fluent you are, what is your fluency standard. So क्या आप इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं? Because I do not get the right word to continue my statements. ये मैंने जो बोला था, यदि ऐसे शब्द आते हैं तो आप एक कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहे हो. सेकंड क्वेश्चन इज डू आई पॉज अ लॉट व्हेन आई स्पीक. क्या मैं बहुत ज्यादा रुकता हूं बोलते समय? यदि ऐसा भी हो रहा है, इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ पॉजेस. पॉज एक फीचर है, वॉइस मॉड्यूलेशन का एक फीचर है जो इंपॉर्टेंट बनाता है अगले शब्दों को, लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा पॉज ले रहे हो तो वहां पे दिक्कत देगा. डू आई यूज सर्टेन एक्सप्रेशन सच एज यू नो, आई मीन, एक्चुअली. यदि ऐसे भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो दैट टू इज डायरेक्ट इंडिकेशन where you lack with the fluency. You mean, I know. So avoid using these all particular phrases. Next one is, do I speak very slow and careful because I feel to commit mistakes? क्या आप बहुत ज्यादा स्लो हैं, बहुत ज्यादा स्लो स्पीच डिलीवरी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्योंकि आपको ये डर लगता है कि आप भूल जाएंगे यदि आप तेज जाएंगे तो. And the last one is, do I mumble some words? Mumble,
Do I mumble some words because of the doubt in the pronunciation? आप कुछ शब्दों को बुदबुदा जाते हैं. मम्बल का हिंदी वर्ड होता है बुदबुदाना. मतलब आप ऐसे बोल जाएं कि सामने वालों को पता ही न चले. मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर मम्बल की बात हो रही है. Do I mumble some words because of the doubt in the pronunciation? आपको जिन शब्दों के ऊपर डाउट है या जो शब्द आप मीनिंगफुल नहीं जानते, where you are not sure about the meaning of those all words, आप उन्हें बुदबुदा जाते हैं. ना सामने वाले को समझ में आए ना आपको समझ में आए. You just said, that's all. So these things are very much important to make about your speech, to know about your speech, that is fluency. चलिए आगे बढ़ते हैं. टिप्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस. मेरे ख्याल से मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, कुछ ही स्लाइड्स और लूंगा ताकि ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए. सो टिप्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस. कुछ ऐसी टिप्स हैं जो ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट मींस इंप्रेशन छोड़ सकती हैं. वन बाय वन उन्हें जान लेते हैं. बिफोर बिगनिंग, look at all the sections of the audience sitting around you. ये बहुत ज़्यादा important है. when you are giving a presentation, you must have the sight at every corner where the audience are sitting. हर उस कोने में आप अपनी नजर डालेंगे जहां पर ऑडियंस बैठी है, because it gives you a confidence to face them. Second one is begin with a smile and greet in a polite tone. Begin with a smile. आप जब भी कभी स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप हमेशा मुस्कुराते हुए देखें और आप अपनी कॉन्वर्सेशन हमेशा ग्रीटिंग से चालू करें, मींस उनको विश करने से चालू करें. द थर्ड पॉइंट इज मेक योर ऑडियंस रियलाइज दैट यू आर देयर टू शेयर समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट लेक्चरिंग. इट इज वेरी मच मस्ट. आपकी ऑडियंस को आपके शुरुआती स्टेटमेंट से यह पता चल जाए कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो it too can create impact on the audience. Next one is change the tone then and there as per the responses of the audience. जब भी कभी आप टोन यूज करते हैं, टोन आपकी ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस के हिसाब से बदलनी चाहिए. मीन्स योर टोन must get changed as per the responses of the audience. जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा टोन उसी के हिसाब से बदलती रहनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव रहे, so that you can make your tone very much attractive to the audience. Next one is choose familiar examples. ऐसे examples यूज कीजिए जो familiar हों. familiar हों मतलब यदि मैं धरती का वासी हूं, जाहिर सी बात है मैं धरती का वासी हूं, आई एम नॉट ए एलियन इन एनी केस, तो मुझे examples वो लेने चाहिए which are the part of my day to day life, जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं. So that will connect the audience as well, because जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है वो दूसरे की जिंदगी का भी हिस्सा है, क्योंकि वो भी, यदि मैं एलियन नहीं हूं तो वो भी एलियन नहीं है. Next one is use of vocabulary. Use of vocabulary means use of vocabulary must be focused with the attention of the audience. Vocabulary पे focus करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप यदि ऐसी vocabulary यूज करते हैं which is known to you only, so उस केस में audience वहां पर attention खो देंगे, आप audience attention खो देंगे. Next one is ask for the time if you are not able to answer the question of the audience instead of getting irritated. ऐसा होता है at the end of the presentation when audience ask you something, आप उसका जवाब नहीं जानते हो, so वहां पर do not get irritated. यदि इरिटेट हो गए तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दोगे और इंपैक्ट भी लूज कर दोगे. जो अट्रैक्शन होता है which you created with your complete presentation, you will lose at the end if you are not able to answer a question and it got you irritated. So it is better to get the time. ये ज्यादा अच्छा है यदि आपको उसका जवाब नहीं पता तो आप समय लें ऑडियंस से, so that you can make that clear later. And the next one is stop roaming your mind with different views. अपने दिमाग को रोकिएगा. जब आप स्टेज पर हो, your focus must be towards the delivery, towards the presentation, towards the presentation and delivery. ध्यान रखिएगा आपका प्रेजेंटेशन की तरफ ही ध्यान होना चाहिए, उसको डिलीवर करने पर ध्यान होना चाहिए. आपका दिमाग इधर उधर ना भटके, because ultimately whatever you are giving, whatever you are doing means with respect to the presentation, that is because of your mind. यदि mind इधर उधर घूमेगा तो you will not be able to like focus on the contents. You will not be able to attract the audience. So just one second. Extremely sorry for the small pause. आगे बढ़ते हैं.
टिप्स टू क्रिएट, ओके ये हम कर चुके हैं, वी हैव गॉन थ्रू दिस स्लाइड। नेक्स्ट लेके चलते हैं, टिप्स टू ओवरकम नर्वसनेस बिफोर स्पीच। जो नर्वसनेस, जो अनकंफर्टेबिलिटी आप फेस करते हो किसी भी स्पीच को देने से पहले, किसी भी स्टेज को फेस करने से पहले, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी के लिए मददगार हैं। बच्चों कभी ना कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां पर आप स्टेज फेस करोगे। यदि इन चीजों को करोगे, यू विल फील bit more confident on the stage and can leave the better impression on the people those who are there as an audience. जानने की कोशिश करते हैं। The first point, believe that fear is your friend than enemy. हम ज्यादातर जो गुस्सा, जो हमारा डर है, उसको हम अपना शत्रु मानते हैं। Actually that fear is your best friend. How? जितना आपको वो पीछे पुश करता है उतना ही वो आपको आगे पुश करता है, इन दैट सेंस, क्योंकि यदि आपने उस चीज को उस लेवल को एक बार अचीव कर लिया, यू वॉन्ट बी अफ्रेड ऑफ दैट थिंग। यस और नो? आप उस चीज को हटा ही देते हो इफ यू अचीव दैट। वेयर यू हैव अ फियर, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पर आपके दिमाग में एक डर है और यदि उस डर को आपने अचीव कर लिया, इफ यू क्रॉस द बैरियर, उसके बाद वो डर खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड फियर इज योर फ्रेंड इंस्टेड ऑफ एनिमी। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड कंफर्टेबिलिटी। आप जो भी कोई टॉपिक प्रेजेंटेशन का चूज कर रहे हो, अपनी स्पीच का चूज कर रहे हो, दैट मस्ट बी कंफर्टेबल टू यू, कंफर्टेबल टू योर स्टैंडर्ड। आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो आपको कंफर्टेबल हो, आपकी चॉइस का हो, तभी आप उस प्रेजेंटेशन को ज्यादा इफेक्टिव दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज इफ यू आर नोविस, नोविस का मतलब होता है वेरी मच न्यू टू अ ट्रेड ऑफ फील्ड, वेरी मच न्यू टू अ ट्रेड ऑफ फील्ड। यदि आप बहुत नौसिखे टाइप के हैं या नए नए हैं, so if you are novice then prepare the topic a bit more deeply just to avoid blanks with the thoughts. आप किसी भी हालत में ऐसी स्टेज पर ना पहुंच जाएं जहां पर आप थॉट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, थॉट्स नहीं आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब आप नए हैं, आपको अपना टॉपिक बहुत ज्यादा डीपली प्रेजेंट करना चाहिए, डीपली फोकस करना चाहिए। गिव अ मॉक स्पीच। नेक्स्ट पॉइंट, गिव अ मॉक स्पीच इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मॉक का मतलब होता है एक डेमो। आप अपनी स्पीच का डेमो दें अपने फ्रेंड्स के आगे, रिलेटिव्स के आगे या फिर मिरर के आगे, सो दैट यू कैन गेट टू नो योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स in your presentation and spit easy, anticipate easy and difficult questions and prepare answer for the same. आप एक्सपेक्ट करें बहुत ज्यादा difficult questions को, anticipate easy and difficult questions both at the same time. आप आसान और कठिन दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को रेडी करें ताकि आप उनका जवाब बेहतरीन तरीके से दे पाएं प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन में। कंट्रोल योर ब्रेथ, आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें, मींस जो आप सांस ले रहे हैं, जितना कंट्रोल आपकी ब्रेथ रहेगी उतना कंट्रोल, उतना कॉन्फिडेंट आप स्टेज पे शो करोगे। डू नॉट कमेंट ऑन योर नर्वसनेस। कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पर खड़े होकर अपनी नर्वसनेस के बारे में खुद बोलते हैं कि देखिए मेरी टांगें हिल रही हैं, मैं कांप रहा हूं, स्टिल आई एम गिविंग माई प्रेजेंटेशन। No need to comment anything about your nervousness which you are feeling on that stage in any case. किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में आपको अपनी नर्वसनेस को लेके कमेंट नहीं करना। इफ पीपल आर एबल टू गेट टू नो अबाउट योर नर्वसनेस themselves, that's their choice, that's their knowledge, that's their understanding. आप उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। एंड अल्टीमेटली द लास्ट वन इज prepare until you become comfortable with delivering the topic. आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतना ज्यादा प्रिपेयर करें कि आपको उस लेक्चर को, उस प्रेजेंटेशन को डिलीवरी देने में अनकंफर्टेबिलिटी फील ही ना हो। यू कैन फील कंफर्टेबिलिटी। और आगे जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं, मोस्ट ऑफ यू नो दीज 3 डॉट्स रेफर टू द कंटिन्यूएशन। ये तीनों डॉट्स कंटिन्यूएशन को रेफर करते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई भी ऐसा पॉइंट आता है विच कैन रिमूव द नर्वसनेस ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्रेजेंटर ऑन अ स्टेज, तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी वेरी मच रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट। चलिए, and the last slide for the today's video, tips to improve clarity in the speech. हम अपनी speech में clarity कैसे ला सकते हैं? The first thing, number of words. It is very much important. The words means number of words which you use in your speech per minute that leads the clarity to the audience. So number of words can be spoken per minute is about 120 to 140. 120 से 140 शब्द आपके 1 मिनट में बोले जाने चाहिए। यदि इससे कम या इससे ज्यादा होते हैं तो आप क्लैरिटी को अचीव नहीं कर पाओगे। If the words are less than 120 or more than 140, you won't be able to
get the clarity in your speech for the audience. Next one is practice articulating the words while opening the mouth completely. आप अपने माउथ मूवमेंट, आप लोगों ने मुझे कभी ना कभी देखा है हर हालत में. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव मस्ट ऑल ऑफ यू वर द पार्ट ऑफ माई लेक्चर्स where I generally articulate my mouth properly. मैं शब्दों को articulate करता हूं, properly movement करता हूं माउथ का, तो that too is very much important because आपके शब्द ही impact डालते हैं. Next one is finding out the correct pronunciation. यदि कुछ शब्दों का जो आप जनरली यूज करते हैं, if you use the righteous pronunciation of those all words, it will leave an impression. ये impression ही छोड़ेंगे. It will achieve the clarity. वॉल्यूम एज पर द ऑडियंस, जैसी ऑडियंस हो आपका वॉल्यूम उसी के हिसाब से होना चाहिए. यू आर नॉट सपोज्ड टू वेरी मच लाउड व्हेन यू हैव ओनली 10 पीपल एज अ ऑडियंस, एंड यू मस्ट नॉट बी वेरी मच स्लो व्हेन यू हैव ऑडियंस विद नंबर ऑफ 400. सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. वॉल्यूम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए. यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स टू मेक द अंडरस्टैंडिंग क्लियर. आप अपनी स्पीच में बहुत ज्यादा सादा शब्दों का यूज करेंगे. यूज ऑफ सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. आप किसी भी हालत में आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन ना करें. यू आर नॉट सपोज टू डू आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन टू योर सेंटेंसेस ताकि सामने वाला ना समझ पाए. ऐसा कभी ना हो. आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन करें, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यूज करें ताकि सामने वाला उसे बेटर समझ पाए. नेक्स्ट वन इज मेक अ हैप्पी एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट. बहुत ज्यादा कनेक्ट रहें. फ्रेंडली एनवायरनमेंट मींस यू आर गेटिंग अ कनेक्ट विद द ऑडियंस इवन व्हेन यू डोंट नो देम. जब आप उन्हें जानते भी नहीं तब भी आप एक फ्रेंडली कनेक्ट कर रहे हैं. सो इट विल हेल्प देम टू बी हैप्पी एंड अट्रैक्टिव. To be attracted towards you. So that is make a happy and friendly environment. And the last one is must have detailed knowledge of your topic. ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जो क्लैरिटी को अचीव करता है, प्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंट बनाता है, आपका इंप्रेशन छोड़ता है ऑडियंस में, दैट इज द डिटेल नॉलेज. आप उस टॉपिक की डिटेल नॉलेज जरूर लें ताकि आप क्लैरिटी को अचीव कर पाए, ऑडियंस में इंपैक्ट छोड़ पाए. एंड अगेन 3 dots which leads you to the continuation. यदि ऐसा कोई भी पॉइंट which can help to improve the clarity in the speech, आप उसे लिख सकते हैं, but that must be very much relevant and appropriate. Okay, so in my next video for the 5th unit we'll start with kinesics. यहां पर ये दिख रहा होगा, हम इससे चालू करेंगे. So for today it is the end of my video. One thing at the end, जो मैंने पहले भी बोला था, again I am reiterating at the end, please leave your comments in the comment section so that I can get to know who all have gone through the videos properly. Okay, so lockdown बढ़ ही चुका है. Please be careful, stay at home and be safe. Thank you very much everyone. Bye bye, take care.